Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GK Knowledge. This is the episode number 18 of Daily Current Affairs Show. Today we will discuss top 10 current affairs of 2nd August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications of next video. And guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel. Link is given in the description box. Now let us start. First question. Who has represented India in the 6th BRICS Environmental Ministers meeting under the presidency of Russia? रूस की अध्यक्षता में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर. प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ Environment, Forest and Climate Change, represented India in the 6th BRICS Environment Ministers meeting under the presidency of Russia, along with the Environment Minister of Brazil, Russia, China and South Africa over a virtual platform from New Delhi. केंद्रीय पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की तरफ से 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों में भाग लिया, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ. ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर कॉल्ड फॉर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनवायरमेंट, प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल प्लान्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर कोविड-19. और ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने पर्यावरण को सुधारने के लिए एक पहल का भी आह्वान किया, जिसमें कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार के लिए राष्ट्रीय योजनाओं में उत्पादन और खपत के स्थायी पैटर्न के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा. एंड मंत्रियों ने यह भी उल्लेख किया कि कुनमिंग चीन में अक्टूबर 2020 में होने वाली जैविक विविधता CBD COP15 पर पार्टियों के 15वें सम्मेलन को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया. द मिनिस्टर आल्सो नोटेड दैट द 15th conference of the parties to the Convention on the Biological Diversity CBD COP15 that was scheduled to take place in Kunming, China, October 2020 has been postponed due to COVID-19 pandemic, and India is scheduled to take over the BRICS presidency in 2021. And the BRICS presidency 2020 is hosted by Russia, and member of this BRICS country is Brazil, Russia, India, China and South Africa, and established is in 2009 and theme of 2020 BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth. And South Africa become a member of these countries in 2010. After that, the group was renamed as BRICS. Next question. Which bank has recently launched a special 2-month campaign कोना कोना उम्मीद? किस बैंक ने हाल ही में एक विशेष 2 महीने का अभियान शुरू किया जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक. कोटक महिंद्रा बैंक has launched a special 2-month campaign Kona Kona Umeed with offers and discount across its suite for product to make banking and shopping more rewarding for the customers, so that it boosts consumer demand and lift people enthusiasm during this pandemic situation. कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए 2 महीने का एक अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू किया, जिसमें ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारों को और अधिक पुरस्कृत किया जाएगा और सो दैट उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके और इस महामारी की स्थिति के दौरान लोगों को उत्साह बढ़ाया जा सके. हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज इन मुंबई, महाराष्ट्र, एंड MD and CEO ऑफ दिस Kotak Mahindra Bank is Uday Kotak, and tagline of Kotak Mahindra Bank is "Let's make money simple." Next question. हामिद बकायोको हैज़ नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में हामिद बकायोको को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइवरी कोस्टा। आइवरी कोस्टा डिफेंस मिनिस्टर हामिद बकायोको has been named as Prime Minister of country, and he was presently serving as the interim PM of country since the sudden death of former Prime Minister अमाडू गोन कालीबली। आइवरी कोस्टा के रक्षा मंत्री हामिद बकायोको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। वह वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गोन कालीबली की अचानक मृत्यु के बाद देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे। कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्टा इज यमोक्रो and currency of this country is West African CFA franc. And next question, which space agency has launched Mars 2020 Perseverance rover mission with the United Launch Alliance Atlas V rocket to the red planet Mars? यूनाइटेड स्पेस अलायंस एटलस V रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मार्स किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा। यूनाइटेड स्टेट्स फिफ्थ मार्स मिशन मार्स 2020 initiated by NASA after launching the biggest Mars rover named Perseverance, which was lifted up by United Launch Alliance Atlas V-41 rocket from the Florida Cape Canaveral Air Force Station, United States. The rover will land on Jezero, crater of Mars, on February 18, 2021, with duration of at least one Mars mission, that is equal to 687 Earth days. National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया और फ्लोरिडा में कैप डाउन कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यह मिशन को लॉन्च किया गया। यह रोवर 18 फरवरी 2021 के मंगल के जेजेरो क्रेटर पर कम से कम एक मंगल वर्ष के बाद उतरेगा, जो कि लगभग पृथ्वी 687 दिन के पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। द हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज इन वाशिंगटन DC, US. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे ऑफ जुलाई मंथ अराउंड द वर्ल्ड? विश्व रेंजर डे प्रतिवर्ष दुनिया भर में जुलाई महीने के किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिटल वॉलेट कंपनी हैज़ लॉन्च MPay.me UPI link service that allows user to send and receive money from any UPI payment app? किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने MPay.me UPI लिंक सेवा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी UPI भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोबीक्विक। Digital wallet company MobiKwik has launched MPay.me UPI link service that allow users to send and receive money from any UPI payment app. डिजिटल वॉलेट कंपनी MobiKwik ने MPay.me UPI लिंक सेवा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी UPI भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। दिस सिंगल लिंक क्रिएटेड यूजिंग MPay.me कैन बी शेयर्ड एनीवेयर टू सेंड एंड रिसीव मनी एंड इट विल वर्क सीमलेसली ऑन मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप। यह सिंगल लिंक MPay.me का उपयोग करके पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी इसका आदान प्रदान किया जा सकता है पैसे का, और इसको मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी डाउनलोड और काम कराया जा सकता है। थ्रू MPay.me उपयोगकर्ता अब अपने फ़ोन नंबर का उपयोग करके अपने स्वयं की निजी भुगतान गेटवे उत्पन्न कर सकेंगे। इस लिंक का उपयोग किसी भी UPI ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वो मोबीक्विक हो, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। थ्रू MPay.me users will now be able to generate their own mini personal payment gateways using this their phone number or mobile number. Payment can be
made using this link through any UPI app like MobiKwik, Google Pay, PhonePe and Paytm. And headquarter of MobiKwik is in Gurgaon, Haryana, and founder CEO and director is Bipin Preet Singh. Next question, who has been appointed as additional and independent director of Great Eastern Shipping Company Limited? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उर्जित आर पटेल। द फार्मर RBI गवर्नर उर्जित आर पटेल अपॉइंटेड एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड for a term of 5 years and effective from the August 1st and 2020. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा। एंड ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्स ऑफिस इन मुंबई, महाराष्ट्र, एंड चेयरमैन इज KM Seth. Next question, who has been appointed the private secretary to Prime Minister Narendra Modi on co-terminus basis? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह-टर्मिनस आधार पर निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सचिव चंद्र शाह। 2008 batch IAS officer Hardik Sachit Chandra Shah has been appointed as the private secretary to PM Narendra Modi, and he is currently serving as deputy secretary in the Prime Minister office. इंडियाज हाई 2010 बैच के IAS अधिकारी ऑफिसर हार्दिक सचित चंद्र शाह को सह टर्मिनस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किया गया, और वह वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और अदर अपॉइंटमेंट रिसेंटली इन न्यूज, इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश रीवा गांगुली दास इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द सेक्रेटरी ईस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड P. Praveen Siddhartha has been appointed as the new personal secretary to the President of India, Ramnath Kovind. Next question, Sonam Sering Lepcha, who passed away, he is a famous. Right answer is option number A. Option number B, folk musician. The folk musician, composer, lyricist and Padma Shri awardee Sonam Sering Lepcha passed away at the age of 92 at the Kalimpong, West Bengal due to old age ailments. The लोक संगीतकार गीतकार और पद्म श्री से सम्मानित सोनम टेसरिंग लेप्चा का निधन 92 वर्ष की अवस्था में हो गया। He played a major role in reviving and promoting the Lepcha culture, which is one of the indigenous culture of Sikkim. उन्होंने लेप्चा संगीत को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो सिक्किम की स्वदेशी संस्कृति में से एक था। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज कोलैबोरेशन विद TransUnion CIBIL लॉन्च फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म नेम्ड MSME सक्षम फॉर MSMEs। उस संस्था का नाम बताएं जिसने TransUnion CIBIL के साथ मिलकर MSMEs के लिए MSME सक्षम नाम से विस्तृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SIDBI। The Small Industry Development Bank of India is in association with the TransUnion CIBIL Limited, that is Credit Information Bureau India Limited, has launched a comprehensive financial education and one-stop knowledge platform for micro, small and medium enterprises MSME Saksham, which will guide MSME seeking quick access to finance and will also support them in managing their credit obligations. स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने TransUnion CIBIL के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल एजुकेशन एंड वन स्टॉप नॉलेज प्लेटफॉर्म MSME सक्षम लॉन्च किया।
जो एमएसएमई को वित्त की त्वरित पहुंच के लिए मार्गदर्शन करेगा और उसके क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में उनका समर्थन भी करेगा। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी इज मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड हेडक्वार्टर इन लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड headquarter of CIBIL is in Mumbai, Maharashtra. And this is the end of the video, and please, if you like this video, please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel Online GK Knowledge, and see you in next video. Thank you.